So hi everyone, welcome to you all in my another video. Today's video is about pharmacovigilance or drug safety, the opportunities in India or Australia. I will also show you 5 latest advertisement and what their requirement in Australia and what the salary and each and everything I will discuss. But first we are going to discuss about in India. So if you are a fresher, so many people are want to know that the pharmacovigilance, how is the career and what is the progress after 5 years, what will be the salary, So in my last video I discussed that top 5 pharmacy professions in India and abroad. So pharmacovigilance is one of them, and I can say pharmacovigilance have a very good scope in right now, even in the future after 5 years or 10 years also, because this is like mandatory for all the pharmaceutical companies. Even the clinical trials they are doing, they have to make their own department. So whatever you are, bachelor's degree in pharmacy or you have another degree, PharmD, MPharm or whatever, so you can enter in this profession because the salary is very good right now in India. Lot of MNCs, a lot of IT companies, they are hiring like Cognizant, TCS, Genesis. A lot of companies are basically right now they are hiring. The salary is like in initial days I can say like 25 to 30,000 they are paying, but after 5 years it will be 50 plus thousand. So this is a good growth. I know many of my friends, my seniors, my classmates, they work and now they are manager. Their salary like 80,000, 90,000 up to 1 lakh. Many of them they are earning in pharmacovigilance in India. So same like in abroad, all the countries they have their own regulations, and everyone here is a regulation very tight. Everyone has to monitor the drug safety, pharmacovigilance in very closely, especially if you are doing a new trial or existing drugs. Especially if you are talking about in Australia very strict. On this. If someone have a very small injury from the any of the medicine or something or medical device, they can file. They can file a suit. A lot of money here is involving in Australia. So all the companies in Australia they have separate department pharmacovigilance, and a lot of jobs is here. So now I am going to show you the top 5 jobs advertisement right now in Australia and what are their requirements. So here I am requesting you, please like and subscribe my videos so I can make more videos, because so now we are on number 1 website in Australia. If you are looking a job, this is called seek.com.au. So this is the number 1 website in Australia. So if you are looking at any job, this is the website. You can search and find a lot of jobs. So I just type here that pharmacovigilance in any job in Australia. So let's see what are the advertisement is available here, and that pharmacist. No. Yeah, we want to hear this is one of the job called Senior Pharmacovigilance Associate. This is in the Gold Coast. They are asking 18 days back. They give this advertisement. So here they are asking that at least 2-year experience in pharmaceutical industry. So if you have 2-year experience of working in pharmacovigilance, so you are eligible to apply for this job. So what are the other things they required? This is in Australia. They not just look at your degree and experience. Other things, your soft skills also very important in Australia when you are looking and job. You are asking that previous experience acting as a ऑस्ट्रेलियन लोकल फार्म, मतलब आपको पहले का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में आपने काम किया है। जो हम यहाँ पे जहाँ पे जो एसोसिएशन है जिसको हम रिपोर्ट करते हैं वो है TGA, है ना, थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर जो है उनको वो करनी पड़ती है ना, और क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिफिकेशन जो ना, ये बोल रहे हैं बैचलर डिग्री हो आपकी लाइफ साइंस के अंदर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की डिग्री हो, मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, तो इनमें से कोई भी आप हैं, और एटलीस्ट 2-year एक्सपीरियंस है फार्माकोविजिलेंस और क्वालिटी रोल इन फार्मास्यूटिकल और बायोटेक मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, तो फिर आप जो है एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, है ना। और अदर चीज हमारा कि एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, रिजल्ट ओरिएंटेड, एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज वर्क, able to make discussion, successful driving. ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट आपको 1 by 1 जो है इनको जो है एड्रेस करना होता है कि आपकी प्रीवियस जॉब में या आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में आपने कैसे हैंडल किया था, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट CV भेज दिया आपको जो है कॉल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया को आपको एड्रेस करना पड़ता है 1 by 1। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा वो कैसे आप लोग कर सकते हैं, अभी ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि बेनिफिट क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर सैलरी देंगे ये और ये सब चीजें उन्होंने बताया हुआ है।
और इन्होंने भाई एक जो है इन्होंने बहुत अच्छी काम किया कि ईमेल दिया हुआ है, तो इस ईमेल पे आप अपना सीवी भेज सकते हैं अपने कवरिंग लेटर के साथ में, है ना। और उन्होंने एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लोगों के लिए ये है कि उन्होंने लिखा है यहाँ पर, यू मस्ट हैव द राइट टू लिव इन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हैं, आप इंडिया में हैं, सो यू कैन नॉट वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब, सो दे आर आस्किंग दैट दोज आर ऑलरेडी वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, they have 2 year experience in pharmacovigilance and they can apply for this job, so now we will see any other advertisement. So you can see another advertisement is for drug safety associate. This saying EU based all cities, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सारी सिटीज में इनको रिक्वायर्ड, हर सिटी में एक बंदा इनको चाहिए, है ना। अब इसकी रिक्वायरमेंट भी क्या है देखते हैं यहाँ पर, जो है एक्सपीरियंस इन क्वालिफिकेशन, they are asking registered nurse or pharmacist or with health or biomedical degree और related scientific degree और qualification requirement, मतलब कोई भी अगर हेल्थ साइंस में डिग्री है आपकी और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये भी वही मांग रहे हैं ना, तो उनकी भी कुछ ज्यादा, और फिर वही पूछ रहे हैं कि जो है आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, एबिलिटी टू राइट क्लियरली, कंसाइज, ये सारी चीजें ये लोग पूछ रहे हैं। और उन्होंने लास्ट में शायद कुछ फिर उन्होंने लिखा नहीं है ये वाली बात कि आप जो है वीजा स्पॉन्सरशिप करेंगे या नहीं, है ना। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, क्लिनिकल ट्रायल्स में इतनी जॉब्स हैं, वहां पर जो है वो क्लियरली मेंशन करके दे रहे हैं कि हम जो है आपको जो है आपका वीजा हम स्पॉन्सर करेंगे, मगर यहाँ पर जो है फार्माकोविजिलेंस में कोई भी जो जॉब है वो जो है उसके अंदर जो है वो मेंशन नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जितनी भी मैंने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी देखे हैं इसके फार्माकोविजिलेंस के लिए। एक और देखिए यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, इनको भी चाहिए, और इनका देखते हैं ये क्या बोलते हैं, तो इनको भी चाहिए जो है फुल टाइम परमानेंट पोजीशन है ये, और इनको चाहिए हंटर वैली एनएसडब्ल्यू के अंदर, न्यू साउथ वेल्स में एक शहर है छोटा सा, वहां इनको चाहिए। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एक क्राइटेरिया फ्री वही हो गया, डिग्री ऑफ साइंस, वेटनरी साइंस। बेसिकली जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, वो बेचती है, तो फिर ये जो लोग जो है एनिमल साइंस में या लाइफ साइंस में डिग्री मांग रहे हैं, तो अगर आपकी हेल्थ साइंस डिग्री है तो आप भी एलिजिबल है इस जॉब के लिए, है ना। ये सारी चीजें जो क्राइटेरिया दिए हुआ है, सारी चीजें आपको बनवाने वन जो है आपको जो है एड्रेस करना होता है। इसके पूछ रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एक्सेल फॉर बेसिक डेटा एनालिसिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एसेंशियल आपको आना चाहिए, है ना। डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कलेक्ट एंड एवल्यूएट साइंटिफिक डेटा, है ना, ये सब सारी चीजें आपको चाहिए। अब एप्लीकेशन करो, लास्ट में लिखा है इफ यू फील दैट यू आर राइट पर्सन फॉर दिस पोजीशन प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन वाया सीक। ये सीक जो वेबसाइट है इसी के बेस पे ये मांग रहे हैं, और प्लीज एड्रेस द सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो है जैसे कि डिग्री होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज आपको क्या है नहीं, ये सारे आपको 1 by 1 आपको एड्रेस करने पड़ेंगे। ये एड्रेस कैसे करते हैं मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा, और दूसरी जॉब के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि भैया कभी रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्लाई ना करे, तो इंडिविजुअल बंदा है, आपको एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री है साइंस की, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उन्होंने लास्ट में लिखा है यहाँ पर एम्प्लॉयर एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, which of the following statement best describe your work to right to work in Australia। बेसिकली पूछ रहे हैं कि आपके पास कौन सा वीजा है, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो कौन से वीजा पे आप हैं, और उसकी बेस पर ये आपको जो है जॉब देंगे। तो मतलब यही है कि जो ऑस्ट्रेलिया में है ये सारी की सारी जॉब उन लोगों की नहीं है। तो अगर आप इंडिया में हैं और यू आर लुकिंग ए जॉब in Australia, so it is very, very difficult for you to get a job. No one gives you a job if you are in India, So what is the best option for you to come to Australia, So there is a option is for you that you can come or study, or the best basically if your partner, your husband or your wife can study and you can be, or can be, because you will be a dependent on her or him. Then dependent can work in Australia full work right. So you will be like you are coming for master degree, so you can work those 2 years. In another you will get 2 more years. And meanwhile you can when you are working very good, the company can sponsor your visa for your PR visa. That's called 186 subclass 186. This is a industry sponsored visa. So in that case, the company can sponsor you. But if you are in India, no one can give you a job. So there is no opportunity basically if you are in India and you're looking a job in Australia. So you must move in Australia. Any visa, student visa or dependent visa, or even you can get some 491, but this kind of jobs is not available in the regional areas, So because all the pharmaceutical companies, the headquarters in Sydney and Melbourne, I mean the big cities and Gold Coast, those kind of things. So
शॉर्ट में ये है कि आपको अगर ऑस्ट्रेलिया आना है तो जॉब के चांसेस बहुत हैं, जॉब है यहाँ पर, मगर जॉब जो है एज कम्पेयर टू दूसरे प्रोफेशन जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, फार्माकोविजिलेंस में इतनी जॉब्स नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी वीज़ा आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। तो मैंने कम से कम 7-8 एडवर्टीजमेंट मैंने पहले ही देख चुके हैं, तो अभी इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। और प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा वीडियो, तो मैं दूसरे वीडियो आपको बनाता रहूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर जो है मिलते हैं अगले वीडियो में।